Hello everyone, this is Abhishek Tiwari here. Welcome you all on the City Public Schools YouTube channel. I'm here to brought you back another video, the very first video of lesson third of your snapshots, Hornbill, which is Discovering Tut. The saga continues. Okay, it is written by A.R. Williams, right? Students, this is the third lesson of Hornbill, the Discovering Tut. Tut was a king, Tatakheten. His full name was Tatakheten, so he shortly Tut was a king of Egypt, the very youngest king who died in the very youngest age. Okay, so this story is nothing but a forensic description, okay, about the King Tut, where a forensic team, after the death of his 1880 years after his death, a forensic team went close to his tomb. They taken him out from his tomb, okay, from his graveyard, and it had been analyzed forensically, where in the CT scan machine and some other advanced techniques, medical techniques, some anatomy professor and other team of archaeologists came to research on the death mystery of the King Tut, the youngest king of the youngest pharaoh of that Egyptian empire, who ruled over that several centuries over the Egypt. So this story is about this research. The king, when he was lived, it was 3300 years ago. Okay, so when he was living there, after that he was researched very first time, where the research was not completely successful. Then after 80 years they again researched his body. The anatomy team and professor, some other archaeologists came with, okay, so they discovered several facts about, okay, as it is a part of archaeological research. So and there was a myth also. There was a myth that was connected with it. Okay, so with that myth, no one was ready to go or to drive him out from his graveyard, from his sleeping yard. But later, after 80 years, they once again went there and breaking all the myths and mysteries, and then they could be able to know about his death mystery, his lifestyle, and several other things that could be uncurtained after the discovery of the CT scan and other equipped research or forensic research. Okay, they would be able to know about that man. So this is what about in this Discovering Tut. A saga continues. Okay, saga is story continues, means something which continues with for a long time and that has not been unfolded. Okay, so let's talk about it in Hindi. Let me tell you in Hindi. After that I'll start the explanation. This is really a very interesting explanation, very interesting chapter. This is not a faction, it is a research work, a forensic research work, which has been presented here in this lesson by A.R. Williams. Okay students, let's talk in Hindi. बच्चों, डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज़ एक स्टोरी है एक किंग के बारे में, एक यंगेस्ट किंग के बारे में, जो बहुत यंगेस्ट एज में मिस्टेरिकली उसकी डेथ हो जाती है, रहस्यमय तरीके से उसकी डेथ हो जाती है, जिसका नाम टट शॉर्ट में पॉपुलरली टट था, और वैसे उसका नाम ततनखैतन था. तो इजिप्ट की ये कहानी है. इजिप्ट में रहने वाले एक 3300 वर्ष पहले की कहानी है, जहाँ पे एक पूरा साम्राज्य था और वो समाप्त होता है इसकी मृत्यु से ही. तो इसकी मृत्यु के रीज़न क्या थे और बहुत से और रहस्य थे जिनको खोजने के लिए
एक बार 1920s के दौर में 25 के दौर में रिसर्च होता है, फिर उसके बाद दोबारा 80 साल के बाद रिसर्च होता है 2005-6 में। तो वो जो रिसर्च होते हैं उनसे बहुत सी डिटेल्स निकल के आती है, सीटी स्कैन वगैरह लगा करके एनाटॉमी के प्रोफेसर और इसके साथ साथ आर्कियोलॉजिस्ट तमाम लोग आकर के उसको उसकी ग्रेवयार्ड से बाहर करते हैं। एक मिथ, एक भ्रम भी था कि ग्रेवयार्ड खोदा गया उसका तो भूचाल आएगा, तूफ़ान आएगा, भूकंप आएगा ना, उसकी आत्मा जो है प्रकोप ला देगी। ऐसे एक बहुत से भ्रम थे जिनको दूर करने के लिए ये एक्टिविटी की गई, जो कि यूजुअल एक फॉरेंसिक रिसर्च था। और इस फॉरेंसिक रिसर्च की जो एक्सेप्ट है, इसकी अपनी कहीं ना कहीं उसी का एक भाग है जो इस चैप्टर के इस लेसन के रूप में यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज़ में। इसके राइटर AR विलियम्स हैं जो इस रिसर्च के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस टॉक अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस। होप आपको समझ में आया होगा। आई टोल्ड यू इन शॉर्ट एवरीथिंग। मैंने आपको शॉर्ट में चीज़ें बता दी है। आगे हम लोग देखते हैं कि और एक्चुअली ये तट के बारे में थोड़े से चीज़ों को बेपर्दा करते हैं, देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं तट के बारे में। इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, थोड़ी टफ भी हैं, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे उसको आसान करने की। थैंक यू। ओके, लेट्स मूव। He was just a teenager. He was just a teenager when he was just a teenager when he died. वो एक टीनेजर था। टीनेजर मतलब छोटी उम्र का ही था जब उसकी मृत्यु हुई। लास्ट हेयर ऑफ द पावरफुल फैमिली। हेयर मीन्स होता है सक्सेसर। वो लास्ट सक्सेसर था एक पावरफुल फैमिली का, दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज़, जिसने इजिप्ट पे रूल किया। उसके एम्पायर ने कई शताब्दियों तक इजिप्ट पे रूल किया, मिस्र देश पे रूल किया, जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पड़ने वाला एक देश है। ही वॉज लेड टू रेस्ट लैडन विथ गोल्ड एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन। ओके, सो ही वॉज लेड टू रेस्ट लैडन मतलब लाद करके उसे गोल्ड के साथ पूरा लाद करके ज़मीन में दफना दिया गया। एंड इवेंचुअली और आखिरकार जो है फॉरगॉटन, लोग उसके बारे में भूल गए। सिंस द डिस्कवरी ऑफ दिस टॉम्ब इन 1922, उसकी जो डिस्कवरी थी 1922 में, द मॉडर्न वर्ल्ड हैज़ स्पेकुलेटेड, उसकी डिस्कवरी के साथ ही जो आधुनिक दुनिया थी उसने ये अनुमान लगाया, स्पेकुलेट किया, अनुमान लगाया अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम, कि उसके साथ आखिर क्या हुआ होगा। विथ मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, लोगों को सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी उसके मर्डर की थी कि ज़रूर उसका मर्डर कर दिया गया उसके वंश को ख़त्म करने के लिए। नाउ लीविंग हिज टॉम्ब फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स, उसके बाद उसके टॉम्ब को 80 साल तक छोड़ के रखा गया। ठीक है, आफ्टर दैट आफ्टर 80 ईयर्स टट हैज़ अंडरगोन अ सिटी स्कैन। टट की जो डेड बॉडी थी उसको, उसकी मम्मी इसको कहते हैं। इजिप्ट में आपने मम्मी के बारे में सुना होगा, मम्मी के बारे में मूवीज़ भी आई हैं हॉलीवुड में, आप उसको जानते होंगे। तो मम्मी एक तरह का लेप हुआ करता था इजिप्ट में, जो बॉडी में लगा करके उसके बाद कपड़े के कवर के साथ पट्टे के साथ पूरी बॉडी को बांधते थे। तो वैसे ही मम्मी में लपेट करके उसकी बॉडी भी रखी गई थी। ठीक है, 80 ईयर्स के बाद जब उसको निकाला गया तो उसकी बॉडी को जो है, उसकी मम्मी जो है 80 ईयर्स के बाद उसे एक सिटी स्कैन से गुजरना पड़ा। द ऑफर्स न्यू क्लूज़ अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ। उस सिटी स्कैन से उसके जीवन के बारे में कई और साक्ष्य, कई और प्रमाण जो है देखने को मिले। ठीक है, उसके जीवन के बारे में और कई भी क्लूज़ जो है सामने आए उसके जीवन और उसकी मृत्यु के बारे में। एंड प्रोवाइड प्रिसाइज डेटा फॉर एन एक्यूरेट फोरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द बॉयज़ फैरो। ठीक है, एंड प्रोवाइड्स और रिसर्च के बाद जो है कई प्रिसाइज, स्पष्ट, क्लियर डेटाज जो है देखने को मिले ऑफ एन एक्यूरेट फोरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन। ठीक है, एक एक्यूरेट फोरेंसिक मतलब जांच पड़ताल की चीज़ों को रिकन्स्ट्रक्ट किया गया उस बॉयज़ फ़ैरो के बारे में। फ़ैरो एक पद होता था, फ़ैरो एक राजा का पद था इजिप्ट में, एम्पायर्स में फ़ैरो कहते थे किंग को।
तो इस बॉयज़ फ़ैरो, उस बच्चे जैसे राजा के बारे में फॉरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शंस किया गया, जांच पड़ताल को फिर रिकन्स्ट्रक्ट किया गया और उसके बारे में बहुत सी डिटेल देखने को मिली। ओके, आफ्टर इट an angry wind stirred up ghostly dust devils as the king Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings. An angry wind stirred, जब उसको उसके कब्र से निकाला जाने लगा तो एक गुस्सा वाली, जैसे गुस्सैल हवा अचानक से बहने लगती है, घोस्टली डस्ट और एकदम भूत है धूल, और उसे भूत कोई घोस्टली और हॉन्टेड सीन हो, ऐसा ही जो है डस्ट जो है। डेविल एज किंग टट, मतलब एक डेविल, एक शैतान जैसे राजा की तरह किंग टट के जो है जब उसको बाहर निकालने लगा अपनी रेस्टिंग प्लेस, अपनी कब्र से, तो ये धूल वगैरह एक शैतान की तरह उड़ने लगा, जैसे कि कोई भूतहा प्लेस हो या स्थान, ऐसी मूवी हो। फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस इन द एंशंट इजिप्ट सेमेट्री, उसके अपने रेस्टिंग प्लेस जब उसको निकाला गया, प्राचीन इजिप्शियन सेमेट्री मतलब कब्र में जहाँ उसे रखा गया था, उस स्थान को वैली ऑफ द किंग्स कहा जाता था। ठीक है, तो वहाँ जब उसे निकाला गया, डार्क बेलीड क्लाउड्स, तो गहरे काले बादल जो है गुच्छेदार, हैड स्कडेड क्रॉस द डेजर्ट स्काई, तो उस तेज़ी से, स्कडेड मतलब तेज़ी से आने या घिरने शुरू हुए डेजर्ट स्काई में, उस पूरे डेजर्ट के आसमान में, रेगिस्तान के, ऑल डे पूरे दिन तक। एंड नाउ वर वेलिंग द स्टार्स इन द कैस्केड ग्रे, अब उसके बाद से जो है वेलिंग, अब उसके बाद से जैसे कि कोई कैस्केड ग्रे कलर का जो है कोई एक स्टार्स की पूरी अपनी एक चादर सी ओढ़ ली हो, एक ओढ़नी सी ओढ़ ली हो आसमान ने, अब ऐसा दिखाई देने लगा। इट वॉज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005, ये 6 बजे का समय था 5 जनवरी 2005 को। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी ग्लाइडेड हेड फर्स्ट ना, लगभग 2005 के 5 जनवरी का दिन था 6 बजे का, जब दुनिया की सबसे फेमस ममी को निकाल करके, ग्लाइडेड हेड मतलब कि सिर के बाल उसको उठा करके, फर्स्ट इनटू द सिटी स्कैनर ना, उसे सिटी स्कैनर में लाया गया, ब्रॉट हियर टू प्रोब मीन्स परीक्षण करने के लिए, द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज़, जो उसके बारे में पहले से स्थापित मेडिकल रहस्य था, जो मेडिकल मिस्ट्री थी, उसको जांच करने के लिए सिटी स्कैन में लाया गया। ऑफ द लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर, वो जो छोटा यंग रूलर था, उसके बारे में जानने के लिए, हु डाइड मोर दैन 3300 ईयर्स एगो, जिसकी मृत्यु 3300 ईयर्स पहले हो चुकी थी। ठीक है ना, तो उसकी रिसर्च करने के लिए उसकी बॉडी को जो है निकाल कर सिटी स्कैन में लाया गया, जो कि 3300 ईयर्स पहले उसकी जो डेथ हुई थी। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट द स्टोरी अबाउट टुडेज स्टोरी। आज के लिए इतना ही बच्चों, आज हम लोगों ने इतना पढ़ा है, अगले दिन फिर से पढ़ेंगे और आगे पढ़ेंगे तो और डिटेल्स भी इसके बारे में जानने को मिलेगा। टिल देन यू एंजॉय, थैंक यू।